بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل پی ڈی ایم کے جلسے میں جو کہ ملتان میں منعقد ہوا، حکمران جماعت اور اس پوری حکومت کو شکست فاش دے دی۔ پچھلے 3 دن سے قاسم باغ اسٹیڈیم میں انتظامیہ اور پی ڈی ایم کے کارکنوں میں آنکھ مچولی کا کھیل جاری تھا، جو کہ آخر پی ڈی ایم کے کارکنوں نے جیت لیا۔ جلسہ عام بھرپور تھا، عوام کی تحد نگاہ جو تھی موجودگی ظاہر ہو رہی تھی، بہت بڑی تعداد میں عوام آئی تھی۔ پی ڈی ایم کے تمام قائدین نے خطاب کیا۔ سردار اختر مینگل نے بلوچستان کی محرومیوں کا ایک بار پھر ذکر کیا اور اسٹیبلشمنٹ پہ شدید تنقید کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ڈی ایم میں شامل مختلف جماعتوں کے اکابرین، اہل ملتان، آج کے اس یہ بی ایس این جی کے پاس لائٹ جو لگی ہے نا، وہ ادھر پھرا دو نا۔ آج کے اس پی ڈی ایم کے جلسے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے سلسلے میں منعقد ہونے والے اس عظیم الشان اجتماع میں موجود ملتان کے غیور عوام، مختلف علاقوں سے آنے ہوئے بھائیوں اور بزرگوں، آپ سب کو میرا سلام۔ یہ سارے لوگ اب چونکہ لائٹ نہیں ہے، آپ کے موبائلز کی لائٹس آن کریں، ہم باقی کا جلسہ آپ کے موبائلوں کی لائٹس پہ کریں گے۔ آج کے اس جلسے سے ملتان، اہل ملتان، آپ نے یہ ثابت کر دیا، وہ شہر ہے کہ جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے تخت بھی گرا دیے ہیں اور تاج بھی اڑا دیے ہیں۔ اس کو لائٹ کو پھرا دو رہی ہوں۔ صرف آپ نے کھول یہ لائٹ کھول۔ حکومت کا تخت نہیں اٹھایا، آپ نے حکومت کو بنانے والوں کی ٹوپیاں بھی اڑا دی۔ آج اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے توتوں سے جو ہے وہ اس ملک کو چلانے نہیں دے گی۔ اس ملک میں اگر حکمرانی ہوگی تو ووٹ کی ہوگی، عزت ہوگی تو ووٹ کی ہوگی، عوام کی رائے کی عزت ہوگی۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے صدر اچکزئی صاحب نے تنقید کی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خوشگوار موڈ میں کچھ جملے بھی کہے جو آپ کی نظر ہیں۔ ایک وزیر صاحب نے، بہت بڑا وزیر ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس نے کہا کہ مریم بی بی کی تقریر میں ایک بات ایسی تھی جو آئین کے خلاف تھی، اس پہ مسلم لیگ پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ سبحان تیری قدرت، سبحان تیرے کھیل، چچندر کے سر میں چنبیلی کا تھے۔ وزیر صاحب آپ کو مبارک، اتنی بہترین نظر ہے آپ کی، لیکن افسوس آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جاسوسی اداروں کی مداخلت نظر نہیں آتی۔ مریم نواز شریف نے عمران خان کے ایمانداری کے پول کھولے اور ان کو صادق و امین کا لقب دینے والوں کے بھی دھجیاں اڑا دیں۔
उन्होंने एक एक चीज़ का जिक्र किया इस हुकूमत की कि जो इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, और उन्होंने बताया कि ये कैसा ईमानदार आदमी है। कहते थे कि इमरान खान बंदा ईमानदार है। भाई न्याजी सर्विसेज बनाई टैक्स बचाने के लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। और अलीमा बाजी ने सिलाई मशीन से अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। बनी गालों का महल बन गया, कभी कहता है बीवी ने दिया, कभी कहता है कर्ज लिया, कभी कहता है मैंने अपना फ्लैट बेचा। बनी गालों का महल बन गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, मैं फॉरेन फंडिंग केस पे भी आती हूँ अभी। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर 6 साल से भागा हुआ है, 6 साल से मफरूर है, लेकिन बंदा ईमानदार है। अरबों और खरबों रुपए के गैर मुल्की फंडिंग के सबूत मौजूद हैं, लेकिन बंदा ईमानदार है। स्टेट बैंक ने 23 खुफिया अकाउंट्स पकड़ लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। बशीर मेमन ने गवाही दी, लेकिन बंदा ईमानदार है। एफआईए के अफसर साजिद बाजवा ने गवाही दी, लेकिन बंदा ईमानदार है। आटा चोरी कर लिया, लेकिन बंदा ईमानदार है। आपकी चीनी चुरा ली, लेकिन बंदा ईमानदार है। मालम जब्बा स्कैंडल आ गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। ऑडिटर जनरल ने कहा कि बिलियन 3 सुनामी में अरबों रुपए आवाम की जेब से चले गए, लेकिन बंदा ईमानदार है। और एक और बात, आप लोग जानते हो कि इस हुकूमत के अपने फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं। जानते हो कि इस हुकूमत के अपने फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं, और उन्होंने जानबूझकर एलएनजी की इंपोर्ट को देर की, उसमें ताखीर की, क्योंकि फर्नेस ऑयल के जो प्लांट्स हैं उसके जितने भी ओनर्स हैं वो इमरान खान के खर्चे चलाते हैं। लेकिन बंदा ईमानदार है। और अब उन फर्नेस ऑयल की वजह से, उन फर्नेस ऑयल प्लांट्स की वजह से और एलएनजी की ताखीर से, इंपोर्ट की वजह से आपको बहुत लंबे लंबे बिजली और गैस के बिल मिलेंगे, लेकिन बंदा ईमानदार है। सिलेक्टेड कठपुतली इमरान खान ने खुद ये इतराफ जुर्म किया कि गंदम इंपोर्ट करने में देर हो गई, जिसकी वजह से 200 अरब का डाका अवाम की जेबों पर पड़ा, लेकिन बंदा ईमानदार है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ कि गंदम की कटाई के दौरान आटा मार्केट से गायब हो गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। क्योंकि आटा चीनी माफिया चोर ये खुद है और ये उसके घरों के खर्चे चलाते हैं, इसलिए बंदा ईमानदार है। और फिर कहता है कि मैं कारोबार नहीं करता। ओ भाई, कारोबार करने में मेहनत करनी पड़ती है। कारोबार इज्जत वाले लोग करते हैं जिनको कमा के खाना आता है। कारोबार घर बैठकर दोस्तों की लूट मार की कमाई करने वाले कारोबार नहीं किया करते। और जो
को पढ़िए भाई। जब सारी जिंदगी दूसरों की जेबों पर गुजारा किया हो तो कारोबार कर कर मेहनत करके कमाने की क्या जरूरत है? जब कोई बनी गाला का महल बना दे, जब कोई जमान पाक वाला घर बना दे, जब आटा चीनी चोरी से काम चल जाए तो फिर कारोबार करने की क्या जरूरत है भाई? और फिर कहता है कि इमरान खान ना खाता है ना खाने देता है। आसिम सलीम बाजवा का पिज्जा स्कैंडल सुना है कि नहीं सुना? आसिम सलीम बाजवा का पिज्जा स्कैंडल सुना है या नहीं सुना? एक आपकी जरा पिज्जा का नारा लगाओ। वो जो सरकारी मुलाजिम जो आपके टैक्स से पैसे और तनख्वाह लेता था, उसने अचानक अरबों रुपए के असासे बना लिए और वो जब इस्तीफा देने आया तो उसको कहते हैं नहीं, तुमने इस्तीफा नहीं देना क्योंकि तुम्हारी जरूरत है मुझे मतलब है। और फिर कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अभी देखो ये परवेज इलाही को कौन कहता था? जरा मुझे मुल्तान वालों ये जवाब दो कि कौन कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही है? कौन कहता था? और आज जब अपनी इक्तदार की कश्ती डूबती नजर आई तो उसके कदमों में जा बैठा। उसको कहता है कि अल्लाह का वास्ता है मुझे एनआरओ दे दो। और जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, उनके बड़े भाई को कहता है कि मुझे आज से आप परवेज इलाही समझे। और फिर कहता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। पहले माफिया से चंदे लेता है और फिर उनको अवाम की जेबों पर लूट मार की इजाजत देता है। एनआरओ भी देता है, खाने की इजाजत भी देता है और जो सरकारी अफसर उसको कहता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, उसको उठा के बाहर फेंकता है। वैसे चार बकरियां इमरान खान की, लेकिन चुपके 15 करोड़ का फ्लैट खरीद लेता है। लेकिन खाता है ना खाने देता है। मास्क चोरी, जब कोविड-19 आया तो मास्क की डिमांड बढ़ी। इनके लोगों ने मास्क गायब कर दिए मार्केट से और फिर महंगे करके वापस बेचने की कोशिश की। और उन्हीं को अपना वजीर और मुशीर बना दिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान ने ये करने को कहा था। ना खाता है ना खाने देता है। मुल्तान के मेरे भाइयों, जब आपको ये पता चल गया कि ये फॉरेन फंडिंग का मुकदमा क्यों चलने नहीं दे रहा आगे, क्यों इदारों को इस्तेमाल करके ये फॉरेन फंडिंग का केस रोक कर बैठा है और किस ने बाहर के मुल्क से इसको अरबों रुपए दिए हैं, वो बहुत बड़े बड़े सबूत हैं। अगर वो आवाम के सामने आ गए तो आवाम को पता चल जाएगा कि इसराइल के हक में आज जो मुहिम चला रहे हैं उसके पीछे कौन है। और आखिर में क्या मुल्तान के अवाम भी मेरे साथ मिलकर उस जज को ढूंढ रहे हैं जिसने इसको सादिक और अमीन करार दिया था? किसको? आज वो जज साहब भी, वो शख्स भी आज मुंह छुपाते फिर रहे होंगे कि किस इंसान को मेरे
और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया। हम जानते हैं, कौम जानती है कि वो सादिक अमीन वाला फिक्स मैच था, और जिस तरह अपने सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट देने वाले को इसने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, इसी तरह अपने सिलेक्टर्स को भी आज इसने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। भाई सिलेक्टर्स की भी दाद देनी पड़ती है कि चुन के नाअहल और नालायक तरीन शख्स को हमारे सिरों पर मुसल्लत कर दिया। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसके वक्त में 2 रुपए और 5 रुपए की रोटी थी, और सादिक अमीन के दौर में आज 30 रुपए की रोटी है। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसके दौर में 50 रुपए की चीनी थी, आज 120 रुपए की चीनी मिल रही है। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसके दौर में 30 रुपए किलो आटा था, और आज इस सादिक और अमीन के दौर में 90 रुपए किलो भी आटा नहीं मिल रहा आवाम को। जिस नवाज शरीफ के दौर को तुमने नाअहल करार दिया था, उसके दौर में मजदूर और गरीब पेट भर के खाना खाता था। इस सादिक और अमीन के दौर में गरीब भूखे पेट सोता है। और अब आखिर में पीडीएम की तहरीक, इस हुकूमत को घर भेजने की तहरीक अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। नवाज शरीफ की बेटी का न सिर्फ मुल्तान के गयूर अवाम से वादा है, बल्कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से वादा है कि आपको मुश्किलात से निकालने के लिए, आपके घरों में इंशाअल्लाह ताला जो चूल्हे हैं वो दोबारा से जलाने के लिए, आपके घरों की और मोहल्लों की और मुल्क की रौनकें आबाद करने के लिए, मुझे अगर जेल भी जाना पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ये जेलों में जाना, बेगुनाह जेलें काटना और डेथ सेल्स में सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आना एक हकीर सा नजराना है जो मैं आपके कदमों में पेश करती हूँ। आखिर में पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब किया। उन्होंने शदीद तनकीद भी की और बताया कि अब आप दूर हट जाएं, क्योंकि अवाम का मुकाबला आप नहीं कर सकते। उन्होंने पीडीएम से वाबस्ता तमाम जमातों के कारकुनों को हिदायत दी कि आप लोग 12 दिसंबर को जो जलसा लाहौर में मुनक़िद होना है, उसकी भरपूर तैयारी करें और पाकिस्तान के हर कोने से वहाँ पहुँचें, उस जलसे में शिरकत करें। और उसके बाद उन्होंने इशारा दे दिया कि वहीं से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो जाएगा। तो इस हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं, इनके हाथ पैर फूल चुके हैं। जो कार्रवाइयाँ इन्होंने की मुल्तान का जलसा रोकने के लिए, उसमें शिकस्त के बाद अब ये बात ज़ाहिर हो गई है कि ये पीडीएम की तहरीक को रोकने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं और इनका वक्त करीब आ गया है। जनवरी में इनका क्रियाक्रम हो जाएगा और पाकिस्तान के अवाम को इस अजाब से जान छूट जाएगी। कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको सिर्फ डंडा दिखाया है, एक डंडा दिखाया और फिर दुम दबाकर भाग गए। ये इनकी औकात है। अगर इनमें रत्ती बराबर कोई हमीयत, कोई शर्म, कोई गैरत है तो चाहिए
کہ چلو پر پانی میں ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح آج ہم نے تمہیں ملتان سے بھگایا ہے اور ہم یہاں پر قلعہ قاسم باغ کے سائے میں بہاؤالدین زکریا کے سائے میں اولیاء اللہ کے سائے میں یہ عظیم الشان جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، انشاءاللہ تمہارے تخت کو گرانے میں بھی اسی طرح فاتح اور کامیاب نظر آئیں گے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ گیدڑ بھبکیوں سے ڈر جاتے ہیں۔ ہم نے تم جیسے سورماؤں کا مقابلہ کیا ہے، ڈکٹیٹروں کا براہ راست مقابلہ کیا ہے، تو کیا اور پھٹی کا شوروا کیا ہوگا۔ اور آج میں دوسرا پیغام دینا چاہتا ہوں، پورے ملک کے کارکنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہر ضلع کے ذمہ داروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہر تحصیل کے ذمہ داروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، گھروں سے نکالنا ہے، اور اب انشاءاللہ 13 دسمبر کو لاہور میں ٹاکرا ہوگا۔ انشاءاللہ لاہور میں اب ہم ملیں گے، لاہور میں انشاءاللہ آخری کیل ثابت ہوگا ان کے لیے، وہاں سے ان کا جنازہ نکلے گا اور لاہور سے پھر ہم نے اسلام آباد تک ان کا پیچھا کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے جب تک گیدڑ دم دبا کر ملک نہیں چھوڑے گا۔ ہم اب بکھرے ہوئے اس پاکستانی قوم کو بیٹھنے نہیں دیں گے، نہ ہم نے خود آرام کرنا ہے نہ آپ نے آرام کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر لو کہ اب ہم نے آرام نہیں کرنا، اب ہم نے سکون نہیں کرنا، اب ہم نے دن رات ایک کر کے لاہور کا معرکہ سر کرنا ہے اور اس کے بعد اسلام آباد کا معرکہ سر کرنا ہے۔ نمبر ایک بات جس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دھاندلی کے ذریعے اقتدار پہ آئے ہیں اور ہم نے دھاندلی کو مسترد کیا ہے۔ ہم نے پہلے روز سے آپ کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا، آپ کی حکمرانی کو ہم جبر کی حکمرانی کہتے ہیں، اور جبر کے خلاف لڑنا یہ میرے اکابر اور اسلاف کی سنت ہے اور ہم اس سنت کو پورا کریں گے۔ تمہاری خارجہ پالیسی ناکام ہے، تم نے ہندوستان کے مودی کو کشمیر حوالے کیا اور آج تم فلسطین کی سرزمین کو یہودیوں کے حوالے کر رہے ہو، تو ہم نے سچ کہا تھا نا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ تم نے مودی کے لیے دعائیں کی تھی کہ خدا اس کو اقتدار دے، مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، اس کو اقتدار ملا اور آپ نے کشمیر پر اس کے قبضے کو قانونی قرار دے دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کشمیر کو بیچا نہیں، تم کشمیر فروش ہو، اب تم فلسطین کو بیچنا چاہتے ہو، تم امت مسلمہ کو بیچنا چاہتے ہو۔ ہم امت اسلام کی عزت و وقار پر آپ کو سودا نہیں کرنے دیں گے، ہم اس کی حفاظت کے لیے میدان میں کٹ بنیں گے، لیکن بین الاقوامی ناجائز ایجنڈوں کو پاکستان پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا ہے، اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا ہے، اپنی قوت کو برقرار رکھنا ہے،
तमाम तर खौफ व हरास जो इन्होंने फैलाया, पूरे मुल्क में ये एहसास पैदा किया कि मुल्तान का जलसा नामुमकिन है। यहाँ यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास इंतज़ामी अफसरान उनके घर आए और साफ अल्फाज में उनसे कहा कि हम किसी कीमत पर आपको जलसा नहीं करने देंगे। कल मैं मुल्तान पहुंचा, मैंने यहाँ के अकाबिरीन को बुलाया और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़े तौर पर कहा कि हम हर कीमत पर जलसा करके रहेंगे। अब बताओ, तुम्हारी बात चली है या हमारी बात चली है? और याद रखो, आज हमने पूरे मुल्क को कॉल दे दी है। अब पूरे मुल्क में जुमे को भी मुजाहरे होंगे, इतवार को भी मुजाहरे होंगे और पूरे मुल्क से आवाम लाहौर की तरफ रवाना होंगे। रास्ता रोक कर देखो किस तरह से सैलाब तुम्हें तिनके की तरफ बहा कर ले जाएगा। आप लोग तैयार हैं? लाहौर के लिए तैयार हैं? अभी वापस घरों में जाएं और अपने घर के और अपने मोहल्ले के और गांव के और शहर के एक एक बंदे को उठाएं और कहें कि आज हम कौम की जंग लड़ रहे हैं, आज हम उम्मत की जंग लड़ रहे हैं, आज हम गरीब की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं, आज हम गरीब के हक की जंग लड़ रहे हैं। अगर आज पाकिस्तान का हर शहरी नहीं निकलेगा तो जाहिर है ये फिर अपने फर्ज से दूर हटेगा। आइए आज हम अपना कर्ज उतारें। कौम का कर्ज है हमारे ऊपर, हमने वो कर्ज उतारना है और अपने कौम को वोट का हक वापस दिलाना है। हमने आवाम के वोट के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी इज्जत को बहाल करना है। कौम को वोट का हक वापस दिलाकर इस मुल्क पर जायज हुक्मरानी का रास्ता देना है। हम बड़े एहतियात के साथ आगे जाना चाहते हैं। हमारी शराफत और हमारी तहजीब और हमारी सियासी अखलाकियात, इसको कमज़ोरी न समझा जाए। हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ डंडा दिखाया है, इससे आगे मत जाना चाहिए। हमने डंडा दिखाया है, हम बहुत बुरी तरह तुम्हारा अंजाम कर सकते हैं। हमें इश्तियाल मत दिलाओ। हम तहम्मुल के साथ इस पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। इस पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत व वक़ार देना चाहते हैं। इस पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहते हैं। इनके इदारे मुस्तहकम हों, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो ताकतवर हो, लेकिन वो हमें कमज़ोर करें तो ये सौदा नहीं चलेगा। ये सौदा नहीं चलेगा। फिर कौम को मजबूत बनाओ, कौम को मजबूत बनाओ, अवामी इदारों को मजबूत बनाओ, पार्लियामेंट को मजबूत बनाओ और इस पाकिस्तान को माशी लिहाज से ताकतवर बनाओ। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर होगा। एक बार फिर आपको इस कामयाब जलसे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह जंग जारी रहेगी, ये सफ़र आगे बढ़ेगा और कामयाबी और फतह के साथ इंशाअल्लाह अंजाम को पहुँचेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भी कीजिए। अब मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।